Hello everyone, a warm welcome to our YouTube channel CA Sansar. I am Nandita Nangya, and as we received many messages and calls regarding that how many branch offices a chartered accountant or a chartered accountant firm can open. So today we are going to discuss about the same, and for that we have with us CAIP Vivek Khurana sir. Thank you so much, sir, for giving your valuable time to us. And before going ahead, I request you all to please subscribe the channel so that you will receive all the notifications about our new videos and webinars. So, sir, there are so much queries about that how many branch offices a chartered accountant or a chartered accountant firm can open. So, can you please guide us on the same? Thank you very much, Nandita ji, and the team CA Sansar for giving me once again the opportunity to discuss on some other topic. I have also received the same queries regarding the branch offices, and even I was in a seminar, and my co-speaker, he is a elected member and speaks on the code of ethics, and that time he was discussing on this topic. एंड दैट टाइम शायद माइट बी आई डोंट नो कि उन्होंने कुछ गलत बताया था. मैंने उनको टोका नहीं, बिकॉज कभी भी वेन एवर यू आर गिविंग सम लेक्चर एंड इवन यू आर को स्पीकर, इवन कुछ गलत भी बोल रहे हो, नेवर इंटरप्ट देम, बिकॉज इट्स नॉट द गुड थिंग. yes, if you are the audience, if you are into the audience, then you can say, but as a speaker आई थिंक सो कि आपको नहीं कहना चाहिए, बट ठीक है, वो बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं. एंड दैट टाइम आल्सो एंड इवन आफ्टर दैट आई विल रिसीव मैनी मैसेजेस. मैंने उनको बताया भी, सी दिस इज नॉट द करेक्ट थिंग, दिस इज द राइट थिंग. देन आई थॉट let's have record a video on this topic regarding the maintenance of the branch office. So I will also show you through the ppt जो भी exact mention in the Chartered Accountant Act 1949. So I will show you through the ppt, and before that, one disclaimer is also there, like all these are my personal views and can't be considered the views of the ICI, CSNSR, or any other person or any other authority. And don't take it any legal advice or the legal opinion or the professional advice or the professional opinion. And the purpose of this video is just to spread knowledge, information, awareness, and shall not be treated as solicitation in any manner or for any other purpose whatsoever. एंड प्लीज माई रिक्वेस्ट, लाइक आई सेड कि उन्होंने कुछ गलत बोला, इफ मेरे को भी अगर आपको डाउट हो, देन आल्सो यू कैन गो थ्रू द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट. चार्टर्ड अकाउंटेंट जो शेड्यूल्स हैं, हमारी फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, उस पर भी मेंशन है, कोड ऑफ एथिक्स बुक है, एंड देन अपेंडिंग्स, काउंसिल गाइडलाइंस, यू कैन गो थ्रू इट. एंड देन regarding the maintenance of branch office, like a chartered accountant in practice or the chartered accountant firms, कितने ब्रांच ऑफिस ओपन कर सकते हैं इंडिया में, वन, मोर देन वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, कितने ओपन कर सकते हैं. दैट्स मेंशन इन द सेक्शन 27 of the Chartered Accountant Act, and it says, if a chartered accountant in practice or the firm of chartered accountants has more than one offices in India, then each one of such offices should be in the separate charge of a member of the institute. एंड देन मीन्स, इसका मतलब है कि अगर आप एक से ज्यादा ब्रांच ऑफिसेस, कोई एक से ज्यादा ऑफिसेस अगर आप ओपन करते हैं, तो ईच ऑफिस शुड बी ए सेपरेट चार्ज. किसके पास चार्ज होगा? मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट. मीन्स एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ही चार्ज होगा अगर आप एक से ज्यादा ऑफिसेस ओपन करते हो. एंड देन ये आपका सबसेक्शन 1 है ऑफ द सेक्शन 27. And then it talks failure on the part of the member or a firm to have a member in charge of its branch and a separate member in case of each branches where there are more than one would constitute the professional misconduct. कि मीन्स अगर आप एक से ज्यादा ब्रांचेस वगैरह, एक या उससे ज्यादा ब्रांचेस ओपन करते हैं, तो ईच ब्रांच शुड बी ए सेपरेट चार्ज. मीन्स जो एक सेपरेट मेंबर इंचार्ज होगा उस ब्रांच का. अगर आप नहीं करते, देन गिल्टी फॉर द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. आपका एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा जो एज पर जो कोड ऑफ एथिक्स है, अकॉर्डिंगली दैट डील विद दैट. सो
यहाँ तक तो मीन्स अगर इफ यू गो थ्रू द सेक्शन 27 देन इट्स ओके, कि जो उन्होंने कहा था, जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का भी, तो उन्होंने कहा था ठीक है कि अगर आपने एक से ज्यादा ब्रांचेस हैं, तो उन्होंने भी यही कहा था कि अगर आपकी एक से भी ब्रांचेस ज्यादा हैं तो भी आपको सेपरेट इंचार्ज होना चाहिए। इवन सम मेंबर आस्क द क्वेश्चन कि अगर मेरे दिल्ली में 5 ऑफिस हैं एंड कई मेंबर्स ने ओपन भी कर रहे हैं, देन ही सेड कि यस ही कांट ओपन दैट, उनके लिए भी आपको सेपरेट सेपरेट इंचार्ज होने चाहिए। अगर किसी ने किए देन इट्स रॉन्ग प्रैक्टिस, रॉन्ग थिंग, तो यू शुड कंप्लेन। कंप्लेन तो नहीं कर तो अच्छी बात है किसी की, बट दैट वाज नॉट द गुड थिंग। इसके ऊपर हम अभी हम डिस्कस करते हैं। बट यस, अगर आप सेक्शन 27 को देखेंगे देन यस, देन इट्स ओके कि हाँ ही इज राइटली सेड। बट उसके आगे इट्स मेंशन हाउएवर द काउंसिल हैज गिवन एग्जम्पशंस टू मेंबर प्रैक्टिसिंग हिल एरिया सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, कि अगर कोई मेंबर्स हिली एरिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ एग्जम्पशंस हैं। तो क्या एग्जम्पशंस हैं वो हम डिस्कस करते हैं। जो मेंबर्स इन हिल एरिया में हैं तो उनके लिए है कि सच मेंबर्स जो हिल एरिया में जिनका ऑफिस है, such members are the firms be allowed to open temporary office in the city of Plains फॉर ए लिमिटेड पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स, कि अगर वो हिली एरिया से कहीं प्लेन उसमें ओपन करते हो तो वहां पे भी टेम्परेरी ऑफिस ओपन कर सकते हो, बट अप टू 3 मंथ्स के लिए। और जो रेगुलर ऑफिस आपका है हिली एरिया में, उसको आपको शट डाउन नहीं करना, दैट विल बी कंटिन्यू। और जितने भी कॉरस्पॉन्डेंस है दैट कैन बी फ्रॉम योर रेगुलर ऑफिस। और जो आपका टेम्परेरी ऑफिस है उसको आपने मेंशन नहीं करना। आपका जो सॉरी पहले जो नेम बोर्ड ऑफ द फर्म्स है, तो आप उतने टाइम के लिए वहां पे लगा सकते हो। उसके बाद अगर आपने 3 मंथ्स के बाद, इट्स नॉट परमिटेड कि आप वहां पे डिस्प्ले करो कि यहाँ पे मेरा ऑफिस है। एंड जो आपका टेम्परेरी ऑफिस है, this should not be mentioned in your letterhead, visiting card, or any other documents as a place of business of the firm. जो आपका ओरिजिनल है उसी को ही मेंशन करना है आपने। एंड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एवरी विंटर्स, कि आप जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो या गोइंग टू स्टार्ट कर रहे हो और जब आप क्लोज कर रहे हो, यू शुड इंटीमेट टू द आईसीआई, आपको इंस्टीट्यूट को इंटीमेट करना है कि ये मैं टेम्परेरी ऑफिस कर रहा हूँ। दिस इज फॉर द मेंबर्स हु आर इनटू द हिली एरिया। ये जो हिली एरिया है, काउंसिल ने उनको कुछ एग्जाम्पशंस दिए हैं, तो ये एग्जाम्पशन है फॉर द हिल एरिया। और इसी के अकॉर्डिंगली तो इन्होंने एक और भी मेंशन किया था कि द अबोव कंडीशन अप्लाइड टू एनी एडिशनल ऑफिस सिचुएटेड एट ए प्लेस बियॉन्ड 50 किलोमीटर फ्रॉम द म्युनिसिपल लिमिट इन विच एनी ऑफिस इज सिचुएटेड, कि आप 50 से अबोव, मतलब 50 तक तो आप कर सकते हो, 50 में कोई इशू नहीं है। दिस इज अभी हम डिस्कस कर रहे हैं हिली एरिया के लिए। And then it is necessary to maintain the chartered accountant in charge of the branch of another firm should be associated with him or with the firm either as a partner as a paid assistant, कि जो भी इसके अलावा, ये तो आपकी एग्जामिशन थी, इसके अलावा जो सेक्शन 27 में मेंशन है कि आपको मेंबर इंचार्ज बनाना है फॉर ईच ऑफिस, जो भी ब्रांच ऑफिस। तो मेंबर इंचार्ज कौन होगा? या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो आपके पार्टनर्स वगैरह होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस, या पेड असिस्टेंट जो है, जो या तो आपका पार्टनर या पेड असिस्टेंट। और पेड असिस्टेंट भी कौन? हु आर इनटू होल टाइम एम्प्लॉयमेंट विद यू, वो पेड असिस्टेंट, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, दैट शुड बी देयर, जो मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट है। पेड असिस्टेंट मींस नॉन क्वालिफाइड नहीं, सेक्शन 27 में क्लियरली मेंशन है मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट हु कैन बी द मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट? ओनली द चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट या तो पेड असिस्टेंट या फिर पार्टनर। देन नेक्स्ट है ये जो कोड ऑफ एथिक्स के पैरा 2.12.4 में मेंशन है, हाउएवर a member can be in charge of the two office if they are located in one and the same accommodation। फिर इसके अकॉर्डिंगली उन्होंने कुछ डिफाइन किया है। दिस इज आल्सो मेंशन इन दिस वन पैरा 2.124 के बाद 3 में डेफिनेशन डिफाइन की है कि व्हाट द डेफिनेशन द ऑफिस ए प्लेस where a name board is fixed or where such place is mentioned in the letterhead or any other document as a place of business, then the requirement of section 27 in regard to a member being a charge of an office of a chartered accountant practice a firm of such chartered accountant shall be satisfied only if member is actively associated with such office। कि अगर हम किसी को मेंबर इंचार्ज दिखा रहे हैं कि हमारा ये ऑफिस है, फॉर एग्जांपल माय ऑफिस इज इनटू रोहतक, या माई ऑफिस इज इन टू आगरा, तो मैं किसी को इंचार्ज दिखाता हूँ अपनी फर्म का कि ही इज द इंचार्ज ऑफ दैट ऑफिस, देन दैट पर्सन शुड बी एक्टिवली एसोसिएटेड।
तो एक्टिवली एसोसिएशन का क्या मतलब है कि नॉट लेस देन कि 182 डेज आर मोर, या तो वो वहां पे रह रहा हो उस सिटी में, या फिर उन्होंने अटेंड किया हो 182, नॉट लेस देन 182 मींस 182 days आर मोर, or such other circumstances as in the opinion of the executive committee establish such active association। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी को ब्रांच ऑफिस में अगर आप इंचार्ज भी बना रहे हैं, तो आइदर ही और शी शुड बी स्टे देयर नॉट लेस देन, मतलब उसका रेजिडेंस होना चाहिए, मेंबर रिजाइड इन दैट प्लेस, या शुड अटेंड द ऑफिस। दिस इज द कंडीशंस रिगार्डिंग जो एज पर जो सेक्शन 27 है, यहां तक सब ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो माइट भी जो मेरे फ्रेंड है उन्होंने ये नहीं पढ़ा होगा, तो एज पर द काउंसिल डिसीजन, जो as per the council decision, exemption is granted under proviso to section 27(1) of the Chartered Accountant Act 1914 note to a member or the firm of chartered accountant in a practice to have a second office without second office being under separate charge of a member। मीन्स काउंसिल ने कुछ एग्जम्पशन दे रखी हैं कि आप सेकंड ऑफिस भी ओपन कर सकते हो विदाउट एनी इंचार्ज। सेक्शन 27 आपको क्या कह रहा है कि यस, अगर आप ओपन करोगे तो यू शुड हैव द इंचार्ज ऑफ दैट ऑफिस एंड दैट शुड बी ए मेंबर ऑफ द आईसीए, या तो आपका पार्टनर या पेड असिस्टेंट। हियर इट सेज, जो वो वहां पे गलत बता रहे थे कि नहीं आपको हर ऑफिस में इंचार्ज होना चाहिए, यहाँ पे काउंसिल ने आपको एक एग्जम्पशन दे रखी है कि यस यू कैन ओपन अनदर ऑफिस, सेकंड ऑफिस कर सकते हो विदाउट सेपरेटली चार्ज। तो क्या क्या कंडीशन है? फर्स्ट, अगर जो आपका सेकंड ऑफिस इट्स लोकेटेड इनटू द सेम प्रमाइसिस वेयर योर फर्स्ट ऑफिस इज लोकेटेड, मींस अगर कोई बिल्डिंग है या कोई आपका मॉल है, वहां पे अगर एक आपका ऑफिस है, वहीं पे आपने दूसरा ऑफिस भी ओपन कर लिया, देन नो नीड फॉर द सेपरेट इंचार्ज। सेकेंड थिंग, if the second office is located in the same city in which first office is located। फॉर एग्जाम्पल मेरा फर्स्ट ऑफिस है रोहतक में, और मैं वहीं पे रोहतक में एक एरिया से दूसरे एरिया में सेकंड ऑफिस ओपन करता हूँ, तो यस, विदाउट सेपरेट इंचार्ज आई कैन डू इट। सेम एग्जांपल जलंधर में एक एरिया में है, मॉडल टाउन में है, अब मैं किसी दूसरे एरिया में ओपन कर रहा हूँ, तो यस आई कैन ओपन इट बिकॉज इट्स इनटू द सेम सिटी वेयर योर फर्स्ट ऑफिस इज लोकेटेड। थर्ड कंडीशन क्या है? द सेकंड ऑफिस इज लोकेटेड विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर from the municipal limit of a city in which the first office is located। मीन्स जहां मेरा फर्स्ट ऑफिस है उसकी म्यूनिसपैलिटी लिमिट के विद इन द 50 किलोमीटर आई कैन ऑल्सो ओपन द अनदर ऑफिस विदाउट एनी सेपरेट इंचार्ज। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So you can open another office without any in charge, without any separate in charge, अगर आपका सेकेंड ऑफिस सेम प्रेमिसेस में है जहां पे आपका फर्स्ट ऑफिस है, और इनटू द सेम सिटी, जहां पे सेम सिटी वेयर योर फर्स्ट ऑफिस इज लोकेटेड, और within a distance of 50 kilometer from the municipality limit of a city in which the first office is located। and अगर आपके टू ऑफिसेज हैं तो देन यू हैव टू डिक्लेयर, ऑब्वियसली आपको बताना पड़ेगा कि आपके अगर विच ऑफ द टू ऑफिसेज इज द मेन ऑफिस, एंड जो आपके प्रोफेशनल ड्रेस है, अगर आपके जैसे फॉर एग्जांपल सेम सिटी में या मैंने दो या तीन ऑफिस है, तो आई हैव टू इन्फॉर्म टू द आईसीआई कि कहाँ पे मेरी प्रोफेशनल ड्रेस है, कहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंस करने है, क्या हेड ऑफिस है, कौन सा मेरा ब्रांच ऑफिस आपने ओपन किया, दैट डिटेल यू हैव टू टेल। तो दिस इज रिगार्डिंग द मेंटेनेंस ऑफ ब्रांच ऑफिस। जो कंफ्यूजन मैंने आपको बताया था कि कुछ मेंबर्स मतलब कुछ एक दो ने जो क्वेरीज आई थी, मींस मेंबर्स वर आस्किंग कि हम एक से ज्यादा ओपन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और अगर करते भी हैं सेम सिटी में भी तो हमें सेपरेट इंचार्ज रखना पड़ेगा या विद इन 50 किलोमीटर। सो दिस इज द एग्जाम्पशन जो वहां पे कुछ माइट भी स्किप हो गया हो पढ़ना, तो दैट्स द क्लियर पिक्चर एंड इट्स मेंशन इनटू द कोड ऑफ एथिक्स, जो आपका पार्ट 2 बुक है उसमें आपका मेंशन है, इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में भी वहां पे डिटेल में दिया हुआ है। तो दिस इज आई थिंक नाउ, जो एक क्वेरी थी, कुछ मेल्स या मैसेजेस आए थे आपके पास भी मेरे पास भी, तो आई थिंक नाउ इट्स रिसॉल्व, जो आपको आंसर मिल गया होगा। यस नंदिता जी, इसके अलावा कोई और आपकी क्वेरी या कुछ और? No, sir, thank you so much for such a wonderful presentation. And I request you
to all the users that please like the video, share it with your maximum friends so that they can also get the benefit through it. And for any kind of query, please mention it on the comment box. Thank you so much for joining today. Thank you very much. And my request to all of you, please like the video and share with your friends. It gives us lots of motivation. बिकॉज आपके मोटिवेशन आपके लाइक से भी हमें पता चलता है कि यस यू पीपल लाइक इट इवन इफ यू हैव एनी फर्दर सजेशन देन you can send the mail to the CSNSR team or you can write it to the comment box. Thank you very much. Bye bye. Take care.